इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें एक सूत्र पहले समझना होगा और फिर हम उसकी सहायता से इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। Here we have a plus b and power 3 and it means a plus b multiplied with a plus b and multiplied with a plus b. So the product will be a power 3 and b power 3 and plus 3ab and the bracket, in bracket we write a plus b. So this is the result जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। यहाँ का फर्स्ट नंबर इज a की पावर 3, b so b power 3 and plus 3ab multiplied with a plus b. So using this formula we can expand all the questions of this exercise. The first question is b plus 1 power 3. b plus 1 power 3. Here we have the first number is b and the second number is 1. सबसे पहले हम b whole power 3 plus 1 whole power 3 plus this 3 same to same and then a and b. In place of a here we have b and in place of b here we have 1. a की जगह पर हमारे पास b है और b की जगह पर 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 into b into 1 एंड ब्रैकेट में b plus 1 लिखेंगे। एक बार फिर से देखेंगे कि सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर और उसके ऊपर पावर 3 लगाएंगे, फिर सेकंड जो हमारे पास 1 है इसके ऊपर पावर 3 लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर इंटू लगाएंगे, फिर b into 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर b plus 1 सेम टू सेम लिख लेंगे। b power 3 का मतलब होता है कि b into b into b, so here we get b power 3. If we multiply 1 into 1 into 1, then we get 1 and here we get 3b and multiplied with b plus 1. In the next step we write here b power 3 and plus 1 plus 3b is multiplied with b, so 3b into b plus 3b is multiplied with plus 1, so 3b multiplied with 1. In the next step we write b power 3 and plus 1. When b is multiplied with b we get 3b power 2 and 3b is multiplied with 1, so here we get 3b. This is our answer. Now let's come to question number second. We have c plus 3 and whole power 3. The first number is c and the second is plus 3. So first of all we write c and then power 3 and then power 3 plus 3ab. So 3 times of c multiplied with 3. c multiplied with 3. And then the bracket we write here c plus 3. c power 3. c power 3 means c into c into c. So we get c power 3. So here we write c power 3. The value of 3 power 3, it will be 3 into 3 into 3.
So our value will be 3 3 are 9, 3 are 27. So here we write 27. Now 3 is multiplied with 3, so we get 9c multiplied with c plus 3. In the next step, we write here 3 power 3 plus 27, and 9c is multiplied with c, and 9c is multiplied with 3. So 9c multiplied with c and 9c multiplied with 3. Here we get c power 3 plus 27, 9 and c is multiplied with c, then we get c power 2, 9 3 are 27 and c. So this is our answer. Now let's see question G. 2x plus 3 and whole power 3. Here we have 2x, यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x power 3 and then 3 power 3 and then 3 multiplied with 2x and multiplied with 3. 2x power 3. 2x power 3, it means 2x multiplied with 2x multiplied with 2x. So 2 2 ja 4, 2 ja 8, and x is multiplied with x and then multiplied with x, so here we get x power 3. So in this step we can write x 8x power 3. The value of 3 power 3. 3 power 3 can be written as 3 into 3 into 3. So our answer would be 3 3 are 9, 9 3 are 26. Now here we write 2x plus 3. On multiplying 3 2 ja 6, 3 ja 18x and 2x plus 3. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पद सेम टू सेम लिखेंगे और 18x को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 18x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18x मल्टीप्लाइड विद 2x, 18x multiplied with 3. In the next step, we write 8x power 3 plus 27 plus 18 2 ja 36 and x power 2. Eighteen 3 ja 54 and x. So our answer would be 8x cube plus 27, 36x square and plus 54x. Our next question is x power 2 and plus by whole power 3. So using this identity we can write it x power 2 whole power 3 plus by power 3 plus 3 into a and b. So the value of a is x square and value of b is pi square and लास्ट में हम इस ब्रैकेट को सेम टू सेम लिख लेंगे। अब यहाँ क्या करना है, x पावर 2
and whole power 3. It means x power 2 multiplied with x power 2 multiplied with x power 2. So here we get x power 6. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ये जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं. मल्टीप्लाई अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर्स को ऐड करेंगे. तो 2 added with 2 we get 2 plus 2 plus 2, it means x power 6. So here we write x power 6 and by power 3 and 3x square by x square plus 1. अब हमें इस ब्रैकेट को खोलना होगा. ये दोनों पद सेम टू सेम रहेंगे. अब हम इस ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे? 3x स्क्वायर बाई मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3x स्क्वायर बाई मल्टीप्लाइड विद y, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया. शुरू के दोनों टर्म्स को सेम टू सेम लिख देंगे और अब हम एक स्टेप और आगे जाएंगे. यहाँ आप देख रहे हैं तो हमारा कोफिशिएंट है वो 3 है. x पावर 2 यहाँ है, x पावर 2 ही यहाँ है. जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा और बाई आ प्लस यहाँ हमारा जो कोफिशिएंट है इसको पहले लिख लेते हैं 3. x पावर 2 अकेला टर्म है. बाई एंड बाई इज मल्टीप्लाइड विद बाई, सो हियर वी गेट बाई पावर 2. So our answer is x power 2 and y power 2. Now the next question is 5 plus 3y whole power 3. Five plus 3y एंड होल पावर 3. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 5 एंड पावर 3, इसके बाद हम सेकंड पद लेंगे 3y और इसको भी पावर 3 लगा देंगे, प्लस 3, ये फॉर्मूला से 3 यूज करेंगे. a की जगह पर यहाँ 5 है और b की जगह पर 3y है, तो ab के स्थान पर 5 इंटू 3y ले लेंगे और ब्रैकेट में हम 5 प्लस 3y सेम टू सेम लेते हैं. अब क्या करेंगे? 5 पावर 3, द वैल्यू ऑफ 5 पावर 3 कैन बी कैलकुलेटेड एज 5 इंटू 5 इंटू 5. So it is 125. Here we write 125 plus 3y is multiplied. 3y is multiplied with 3y and then 3y. So here we get 3 3 ja 9, 9 3 ja 27 and y power 3. 27 y power 3 and plus 3 5 ja 15 and 15 3 ja 45. So here we write 45y and 5 plus 3y. अब हम लोग क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को खोलेंगे. ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे कि सबसे पहले ये शुरू की टर्म है, इसको आप सेम टू सेम लिखते हैं. अब हम 45 बाई का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 45 बाई मल्टीप्लाइड विद 5 एंड प्लस 45 बाई मल्टीप्लाइड विद 3y. 45 बाई मल्टीप्लाइड विद 3y. Now you can write 125 and plus 27 and by power 3 plus 5 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 and 22. So 225 by and plus अब हम 45 का 3 से गुणा कर लेंगे. 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13. 135 एंड बाई पावर 2. बाई पावर 2 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ बाई
का मल्टीप्लाई जब बाई से करेंगे तो बाई की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया, इसका प्रसार हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और है अगला हमारे पास, इसको लेके चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई प्लस 2a एक्स वाई प्लस 2 एंड होल पावर। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ जो हमारे पास दो टर्म है, ये एक्स वाई है और ये 2a। तो सबसे पहले इक्वल का निशान लगा लें और यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर हम एक्स वाई और उसके ऊपर पावर 3 लगा दें, फिर प्लस लगाएं, 2a लिखें और इसके ऊपर भी पावर 3 लगा दें। आपने देखा पहले टर्म को लिया, पावर 3 लगाया, दूसरे टर्म को लिया, पावर 3 लगाया, फिर प्लस लगा लें। और ये 3 हम कहाँ से लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं। ये 3 हमेशा 3 ही रहता है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 3 इंटू लगाएंगे, मल्टीप्लाई साइन लगाने के बाद ये पहली नंबर लिखेंगे एक्स वाई, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, दूसरी नंबर लिखेंगे 2a, और उसके बाद जो ब्रैकेट लेंगे उसको सेम टू सेम लिख देंगे एक्स वाई प्लस 2a। एक स्टेप आगे जाएंगे। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई एंड होल पावर 3। होल पावर 3 का मतलब है कि हम एक्स वाई इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई 3 टाइम्स लिख लें। पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ x इंटू एक्स 3 टाइम्स x आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो x पावर 3 हो गया। ऐसे ही बाई इंटू बाई, सो इट कैन बी रिटन एज बाई पावर 3। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, तो हमें मिलेगा x पावर 3 एंड बाई पावर 3। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग 2a को जब एक्सपेंड करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, किस तरह से 2a मल्टीप्लाइड विद 2a मल्टीप्लाइड विद 2a। आप इसको जब देखेंगे कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 and a multiplied with a multiplied with a, then it can be written as a power 3। तो हमारे पास इसको जब ओपन करना है इस ब्रैकेट को, तो हमें यहाँ मिलेगा 8a पावर 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले हम कोएफिशिएंट्स देख लें। यहाँ 3 है और ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 एंड x बाई a और ब्रैकेट को सेम टू सेम। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट। हम लोग सबसे पहले इस पद को सेम टू सेम लिख लें दोनों को। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलें, तो 6x बाई a को मल्टीप्लाई करेंगे x वाई के साथ में, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी टर्म को हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस साइन लगा देंगे 6x बाई a मल्टीप्लाइड विद 2। इन दोनों टर्म्स के साथ अब कुछ नहीं करना है, बस इनको सेम टू सेम आप नोट डाउन कर लें। और अब यहाँ हम पहले अंकगणित की नंबर्स को देखेंगे। 6 अकेला है और कोई यहाँ पर मैथमेटिकल नंबर है नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो 6 अकेला। ये यहाँ जो x है और यहाँ x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर 2 हो जाएगा। बाई यहाँ है और एक बाई इधर भी है, बाई को जब बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई पावर 2 हो जाएगा। और a अकेला है तो सेम टू सेम कर देंगे। प्लस यहाँ जो यहाँ पर अर्थमेटिकल नंबर्स है, हमारे पास 6 है और 2 है, तो पहले हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। x अकेला है, बाई अकेला है, बट a को a के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो a की पावर 2 एंड दिस इज अवर आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 2। a upon 2 plus b upon 5 and whole power 3।
हम इसको कैसे एक्सपेंड करें, हम इसको कैसे विस्तारित करें, तो आपको देखना है कि हमारे पास पहली नंबर है जो वो है a/2 और दूसरी है b/5। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, a/2 एंड होल पावर 3 यहाँ से देख रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस द सेकेंड नंबर इज b/5, सो यहाँ b/5 लिख करके ब्रैकेट लगाएंगे, पावर 3 लिखेंगे, प्लस 3ab आता है तो हम लोग 3 लिख लेंगे, 3ab का मतलब फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, हियर वी हैव a/2, हियर वी हैव b/5, सो यहाँ हम लोग लिखेंगे a/2 इंटू b/5। अब इसके बाद हम यहाँ एक ब्रैकेट रखेंगे, ब्रैकेट को सेम टू सेम नंबर्स को इसमें नोट डाउन करना है, a/2 एंड प्लस b/5। नाउ come to the next step, a/2 multiplied 3 times। किस तरह से आप देखेंगे, a/2 multiplied with a/2 multiplied with a/2। So when a is multiplied with a, we get a square and then we get a power 3। So in numerator we write a power 3 and 2 2 जा 4 and 4 2 जा 8। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर आया, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया, a पावर 3 आया, और 2 2 जा 4 2 जा 8। ना डिनोमिनेटर्स में जो संख्याएं लिखी हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ फर्स्ट जो स्टेप है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद a/8 लिख दिया जाएगा, प्लस ऐसे ही जब आप इसको b/5 मल्टीप्लाइड विद b/5 एंड b/5 लिखेंगे तो b जो होगा उसकी पावर 3 हो जाएगी, और 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आपका आ जाएगा 125, प्लस यहाँ प्रोडक्ट देखें आप 3ab ऊपर आ जाएगा 3ab और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 5 जा 10। इस ब्रैकेट को आप सेम टू सेम अभी लिख लेंगे, अगले स्टेप में हम लोग इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे। तो यहाँ हमें मिला a पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस b पावर 3 डिवाइडेड बाई 125, एंड नाउ we multiply 3ab/10 with a/2 and then with b/5। So 3ab/10 multiplied with a/2 plus 3ab/10 multiplied with b/5। a power 3/8, b power 3/125 एंड प्लस यहाँ से क्या करना है, कोई भी नंबर कटने वाली है नहीं है, 3a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a पावर 2 हो गया, 3a पावर 2 एंड b अपॉन 10 टू जा 20, प्लस यहाँ हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, a मिलेगा एंड b पावर 2 मिलेगा, क्योंकि b इंटू b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स b पावर 2, एंड 10 5 जा, जब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ डिनोमिनेटर में 50 मिल जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। वेरी इजी है, अगर आप कोशिश करेंगे समझने की तो कोई अधिक मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, जरा इसको देखते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 4 स्टेप्स आते हैं जिनके बीच में प्लस साइन लगाना है, और शुरू की टर्म्स को पावर क्यूब करना है, फिर 3ab की टर्म लानी है, ब्रैकेट लिखना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। 3y प्लस 1/3y एंड होल पावर 3। सॉरी, हियर वी हैव 4y। अब जरा इसको देखते हैं कि इसमें पहला जो पद है वो 3y है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3y एंड होल पावर 3 प्लस जो दूसरी पद है वो हमारे पास है 1/4y एंड होल पावर 3 एंड प्लस 3 लगाएंगे इंटू फर्स्ट नंबर 3y एंड द सेकेंड नंबर 1/4y
और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3y प्लस 1/4। एक स्टेप आगे जाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3y को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 3y इंटू 3y इंटू 3y। So it can be written as 3 3 जा 9, 3 जा 27 and by power 3। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 27 by power 3। अब अगर हम 1/4y को इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4y इंटू 1/4y इंटू 1/4y, इसका मतलब क्या है कि 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड बाई पावर 3। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 64 बाई पावर 3 प्लस, अब यहाँ जरा गौर से देखिए कि ये बाई जो है वो न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 जा 9 और अपॉन में 4। अब एक स्टेप आगे हम ले जाएंगे, प्लस 1/4y सेम टू सेम। अगले स्टेप में हम इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे, सब 27 बाई पावर 3 एंड 1/64 बाई पावर 3 प्लस, तो 9/4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 9/4 मल्टीप्लाइड विद 3y एंड प्लस लगा के 9/4 मल्टीप्लाइड विद 1/4y। इस स्टेप को हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये शुरू की टर्म सेम टू सेम रखनी है, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। यहाँ 3 9 जा 27 अपॉन 4 बाई प्लस 9 1 जा 9 एंड 4 4 जा 16 और ये डिनोमिनेटर में बाई आएगा। इस तरह से हमारा 9/16 बाई यहाँ जाएगा 27 बाई अपॉन 4 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।